Assalamu alaikum everyone. This is Engineer Abdul Basit, Marketing Director of Sindh Educational Organization. Today I warmly welcome you all to our online session of about the entrepreneur mindset and startup ideation. Today our guest speaker is Miss Alina Shaheen. She has 5 year experience as startup consultant, and she's also an Erasmus Mundus scholar. So without any further ado, over to you, ma'am. Thank you very much. Hello, everyone. Can you please, first of all, turn on your cameras? So, it's not like I am talking to the screen just by myself. It would be very nice. Thank you very much. Thank you so much. It's pretty late, Sunday night in Pakistan, I know. तो हम मैं कोई slides लेके नहीं आई हूँ, and I'm not gonna bore you guys. We will sit. It's a nice small group, so we'll chat. We'll talk about it. We'll have a nice conversation. Please, if you guys could just turn on your cameras, it would be very nice. Because I'm not gonna sit here and give you a lecture. We are just gonna have a conversation. I'll wait for one more minute while people are joining, turning on their cameras. Is it okay we do bilingual करते? उर्दू भी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है. तो थोड़ा बहुत सीख लिया है दोनों. So we'll keep it bilingual. Let's see how it works. Can you hear me nicely and properly? Yes, ma'am, you are audible. Thank you. So let me introduce myself quickly, and then I'm gonna go around and I wanna hear from you guys. I want introductions. मैं screen से बिल्कुल बात नहीं कर रही. So I am Anila, as Basit just introduced me. I have been working in the startup space for almost 6 years now. मैंने अपना first job पाकिस्तान से start किया था. If you have heard Accelerate Prosperity. It's an initiative of the Khan Development Network. Gilgit se maine start kiya tha, and then I worked there for 4 years. From there, I moved out. मैं Erasmus Mundus program के through impact entrepreneurship study कर रही हूँ. साथ साथ मैं consultancies करती हूँ, and I worked in. I recently concluded a project in Portugal with Startup Lisboa and Khan Foundation, and I have helped deliver in design projects in Pakistan, in Afghanistan. I have helped deliver project in Dubai. I've lived there for a while. तो थोड़ा बहुत startup space का idea है. So I've been a facilitator in the startup space for years, and now I'm trying to be an entrepreneur myself. तो entrepreneurship पढ़ाना सिखाना बहुत आसान होता है, but as an aspiring entrepreneur myself, I can say that करना बहुत मुश्किल होता है. So it is a rough journey. It does get lonely sometimes, but कुछ चीजें हैं जो they make our lives easy. And जो fundamental चीजें जो मैं लोगों को पहले ट्रेनिंग्स देती थी, वर्कशॉप्स कराती थी, अब खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में. तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दोज फंडामेंटल थिंग्स जहाँ से एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट होती है. तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड स्टार्टअप आइडिएशन तक हम बात करेंगे, आगे नहीं जाएंगे. विल कीप इट वेरी सिंपल. मैं स्लाइड्स नहीं लेके आई 9:30 बजे. कोई भी स्लाइड्स नहीं देखना चाहता. So इसलिए we are gonna discuss and we are gonna have a good conversation. And before we start going into anything else, I wanna know कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, like why have you joined this session tonight? I wanna see your interest जो आपको यहाँ लेके आई है. Let's start quickly. I'm gonna start from Abdul Basit, and then I'm gonna take your names, guys. So bear with me, please. And also, if you could just turn on your cameras. Abdul.
यस मैम, मेरा नाम इंजीनियर अब्दुल बासित है और मैं करंटली मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। एंड ये सेशन मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि हम जो रिसर्च करते हैं इंजीनियरिंग साइट्स पे, वो एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बन जाता है, कोई डिज़ाइन बन जाता है, उसके बाद फिर वो चली जाती है, हम फिर जॉब ढूंढने में लग जाते हैं। अब इस से बिल्कुल। हम कुछ प्रोडक्ट बना लें, इसको हम इस तरह क्या कहते हैं इंक्यूबेशन में लेके जाएं, इसको आगे सेल किस तरीके से हो सकता है, या इसको एक लाइफ दे दें हम अपने प्रोजेक्ट्स को, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो थोड़ा इसके लिए आइडिया मैंने और भी वर्कशॉप्स अटेंड किए हुए थे कुछ, और हम बिजनेस साइड से हमें ना चीज़ें कम आती है कि जो फाइनेंशियल प्लान होता है स्पेशली वो हमें नहीं बनाना आ रहा होता कि वो किस तरीके से बनता है, या हमने अच्छा काम तो कर लिया, उसको किस तरीके से मार्केट करना है, तो ये चीज़ें हमें अच्छे से नहीं आती। तो बस यही लर्न कर रहे हैं अभी तो। Thank you very much. I think that's a very good reason to be here. Let's hear from Vishal Kumar. मेरे सामने लाइन में जो आ रहे हैं. I'm gonna take your name. Hello, ma'am. We can hear you, Vishal. Yeah, yes, ma'am. Ma'am, I want to start up my business, a short business. Uh, आपसे पहले उर्दू समझ में आती है? ये बताएं। बिल्कुल। आती है, सही है। जितनी अंग्रेजी आती है उतनी उर्दू आती है। सही है। अच्छा मैम, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ना पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे वो हर चीज प्रोडक्ट यूज करते थे। जैसे टी शर्ट्स हो जाए, परफ्यूम्स हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो जाए, पर उनका बिजनेस नहीं चला। और दूसरा भी मेरा फ्रेंड्स है, उसने परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट किया, वन प्रोडक्ट से। उसने मेन फोकस किया ही वन प्रोडक्ट पे, और उसका वो बिजनेस चल पड़ा। सही है। अब हम फिर क्या करें, वन प्रोडक्ट पे ध्यान दें या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ध्यान दें? Okay, that's a good question. I hope हम ये question cover करें later. अगर नहीं करते तो याद दिलाना कि we will discuss about this question later. यस मैम। Let's see, रोशनी. हेलो मैम, मैं जो है ना डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हूँ और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने ये सेशन इसलिए अटेंड किया है ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ताकि आगे चलकर अगर मैं कहीं पर भी ये मुझे कहीं पर भी यूज़ करना है तो इसके लिए मुझे नॉलेज होनी चाहिए, ताकि मैं आगे चलकर जो है ना अपना कुछ भी स्टार्टअप ले सकूं, या कहीं भी मुझे जो है ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर भी एज अगर मतलब कि होना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर आगे चलकर भी, तो मैं वो वहाँ पर इसको भी मोटिवेट कर सकूं, इसलिए मैंने ये सेशन ज्वाइन किया। Nice one. Thank you, Roshni. We have Karan Tejwani. Hello, ma'am. I'm computer science student at Sakraibi University. So actually, we are learning so many things in computer world, and today we are seeing that there are many startups rising in the computer industry. Whether these are artificial intelligence related, or cybersecurity, or mobile app development, or whether there are software houses. So I think there are a lot of opportunities of entrepreneurship in technical industry. So there should be a knowledge and awareness related entrepreneurship, whether it's time management, resource management, are the things which we need to have a successful startup. So I think this session helps would help me a lot to learn about entrepreneurship because a single idea cannot work if there is not a proper planning. So I think this session is going to help me learn so many things that need to be considered by starting a new startup. Thank you very much, Karan and Nargis. अस्सलाम वालेकुम अनिला। Walaikum salam. अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? Yes, yes, you are. बोले. थैंक यू। मैंने आपका ये जो सेशन इसलिए ज्वाइन किया है, इसके दो रीजन है मेरे पास। एक तो ये है कि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, शायद आप मुझे नहीं जानती होंगी, मैं भी यासीन से हूँ। रिश्तेदारी में आप मेरी खाला लगती है। तो सेकेंडली ये है कि लास्ट सेमेस्टर में आके मेरा एक सब्जेक्ट आया है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसके बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपके ये सेशन मैंने ज्वाइन किया हुआ है। Okay, good to meet you here, Nargis. We have Sijal.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मैंने ये सेशन इसलिए ज्वाइन किया ताकि मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। Okay. थैंक यू Out मैम। of curiosity. That's also a good reason. That's very entrepreneurial. Awais? हेलो मैम। जी, hi Awais. मैं विशाल ही बात कर रहा हूँ। मैंने जो फर्स्ट सवाल किया था, मैं दूसरा दूसरा सवाल ये भी था। आप नोट कर दीजिए कि हम किस प्लेटफॉर्म पे मना अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अमेजोन है, उधर ना मना अच्छा, लीगल इनको ऑथराइजेशन बहुत हम होती है, देख लेते विशाल पेपर क्विकली। पेपर वर्क बहुत होते हैं। मैं बोल रहा हूँ पे स्टार्टअप करूँ इजी वे से, और स्टेप बाय स्टेप हम्म। आगे बढ़ता जाऊं। फर्स्ट स्टेप, हम्म। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ओके। मना लो इनकम आए। और मैं इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ जी, ऐसे नहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं 50-60 थाउजेंड पे मैं 10,000 15,000 मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं। इस हिसाब से थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे। ठीक है, श्योर। अवैस आपने अनम्यूट किया था मेरे ख्याल में। थोड़ा सा क्विकली मूव करते गाइस। आई थिंक हमारे पास 3-4 और लोग हैं, उनसे हम इंट्रोस सुनते हैं एंड देन विल स्टार्ट। ओके, भाई खान, मुकद्दस, सादिया, शाहिरा, कोई भी। या भाई खान बोल। हमने जी, आपकी आवाज आ पहले जो रही है है। ना नेशनल एक्सपेंशन प्लान का कोई सेशन अटेंड किया हुआ था, तो उसने हमें कॉल किया कि आप कोई ना एक जो है स्टार्टअप लेकर आए। तो मैं सोच रहा था कि टीम से जो है ना कोई टीम बनाऊं और स्टार्टअप लेकर जाऊं, तो इसलिए सेशन ज्वाइन किया है। नाइस नाइस। थैंक यू मुकद्दस, सादिया, शाहिरा एंड अली नवाज। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी शाहिरा, वालेकुम सलाम। मैम, मैंने ये सेशन इसलिए ज्वाइन की है ताकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, क्योंकि मुझे इतना अच्छा खासा पता नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस और मतलब इस तरह। तो मैंने इस वजह से ज्वाइन किए थे ताकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिल सके और मैं कुछ सीख भी सकूं। थैंक ठीक है, यू। थैंक यू वेरी मच। अली, अली नवाज, कैन यू हियर? ओके गाइस, सो ओ या, बोलिए अली, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, हमें नहीं आ रही। तो मीनवाइल अली अपना ऑडियो फिक्स करते, हम क्विकली स्टार्ट करते। एक और बार रिक्वेस्ट करूंगी कि इट वुड बी नाइस अगर आप लोग की शक्लें मुझे नजर आए। सो यू नो इट्स मोर कन्वर्सेशनल। द रीजन आई डिडंट वांट टू डू प्रेजेंटेशंस बस क्योंकि मैं इसको ज्यादा कन्वर्सेशनल रखना चाह रही थी, क्योंकि दैट्स अ बेटर वे टू लर्न, यू नो, टू एंड फ्रो। आप किसी से बात करते इंस्टेड कि मैं आपको प्रेजेंटेशंस दे दूं जो कि आप लेक्चर्स में बैठते रहते। तो थैंक यू वेरी मच। अली, वी स्किप्ड यू बट आप तो ऑर्गेनाइजर है जी, बोले। Thank you, Shaira. Thank you, Vishal, for turning on your cameras. Please, guys, it makes me feel more, you know, included as well. जी बोले अली। चलो अब मैं देख ही सकते होंगे, आइए। जी जी। हाँ, एक्चुअली मैंने सेशन, आपको पता होगा, एक तो डेफिनेटली आपने सही कहा कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, तो डेफिनेटली सेशन ज्वाइन करना था। लेकिन मैं एक्चुअली सुनना चाहता हूँ लोगों से कि वो किस तरह से बात करते हैं, किस टॉपिक पे क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि हमने भी इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अपने इंजीनियरिंग की डिग्री में। लेकिन यहाँ पे देखें, आप बेसिकली गिलगित से हैं, जैसे मैंने कहा। अभी आपके दोस्त शायद जो है ना, मैं कहूँ पड़ोसी वगैरह, वो भी उन्होंने भी सेशन ज्वाइन किया हुआ है, एक सायरा है शायद और दूसरी नरगिस। लेकिन आपका पढ़ने और पढ़ाने का स्टाइल डेफिनेटली अलग है, आपकी आउटलाइन हर चीज़ डिफरेंट होगी। तो इसीलिए हम ये सेशन अरेंज भी करते हैं, और उसके बाद में डेफिनेटली एक एक सेशन अटेंड करता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के आइडियाज सुन सकूं कि वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह डिलीवर करते हैं, ताकि इन फ्यूचर हम वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। दैट्स व्हाई आई जस्ट बिल्कुल। ज्वाइन दिस सेशन, यू कैन से। थैंक यू अली। एंड आई थिंक अली ने हमारे लिए बहुत एक काइंड ऑफ वो प्लेटफॉर्म लेआउट किया है व्हेन वी से यू नो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। सो ही इज लाइक, यू नो, किस तरह सोचते हैं, किस तरह करते हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बियॉन्ड बिजनेस। ना, जब हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करते हैं तो अक्सर लोग उसको
सीधे कनेक्ट करते हैं बिजनेस के साथ, बट इट्स नॉट रियली ओनली डूइंग बिजनेस, राइट? एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिजनेस में अच्छा इसलिए चलता है क्योंकि उस माइंडसेट की वजह से एक बंदा किसी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को ऐसे उसको अप्रोच करता है, इस तरह से उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है कि इट कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो मैं आपको बता रही थी कि आई started as a trainer. पहले मैंने entrepreneurship in new ventures. I studied from South Korea. वहां से पाकिस्तान आई वापस, कुछ ज्यादा पढ़ के नहीं आई थी, बिजनेस मॉडल कैनवस छोटी मोटी चीजें, and then we started working at AP, and then वहां से आपकी लर्निंग एंड ग्रोथ हो जाती है। For 4 years I was designing solutions, programs, workshops, hackathons, boot camps for businesses, and then I started to try to do my own business, right? And इस सारी जर्नी में जो एक मेन इंग्रेडिएंट था जिसकी आज हम बात कर रहे, इट्स द माइंडसेट, राइट? तो जैसे मेरे ख्याल में विशाल कह रहा था कि मुझे ना आसानी से बिजनेस करना है। सो इट्स नॉट ऑलवेज इजी, लेट मी टेल यू, बिजनेस इज नॉट इजी। पढ़ाना आसान है, मैंने वर्कशॉप्स कराए, जब करने लगी हूँ इट्स बिन अ ईयर एंड अ हाफ। मैं कंसल्टेंसी साथ साथ करती हूँ, साथ साथ अपना बिजनेस लॉन्च करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देयर इट्स अ रफ जर्नी, और रफ जर्नी में अगर ये जर्नी ऐसी है कि एक तो आप बहुत सारे हैट्स पहनते, यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। शुरू शुरू में आपकी कोई टीम नहीं होती, आपके पास एक आइडिया होता है, आपको पता भी नहीं होता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, इस आइडिया को मैं कैसे लॉन्च करूंगा या करूंगी, एंड देन इसको कैसे मैं मार्केट में रोल आउट करूंगी, लोग खरीदेंगे या नहीं, विल पीपल पे मी फॉर द सर्विस और प्रोडक्ट, राइट? सो ये सारे अनसर्टेनिटीज होते हैं। So entrepreneurship starts with a lot of questions, and then आप बिल्कुल अकेले, आपने आइडिया पे काम भी करना है, प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन भी करना है, उसको बेचना भी है, आपने टीम भी बिल्ड करनी है, आपने पैसे भी मैनेज करना है, अपने प्रॉफिट भी कमाना है। सो इट्स लाइक अ होल रेंज ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑल बाय योरसेल्फ इनिशियली, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मोस्ट ऑफ अस एंटरप्रेन्योर्स के पास इनिशियली वो फंडिंग नहीं होती, राइट? आपको प्रोडक्ट और सर्विस में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास फंडिंग नहीं होती, आपने टीम हायर करनी है, आपके पास फंडिंग नहीं होती, तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्ट विद द माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बेसिकली सिंपल अल्फाज में ये होता है कि हाउ अ नॉर्मल पर्सन sees a problem, an entrepreneurial mindset person sees an opportunity. First of all, it's how you look at the world, right? How you look at your life, how you look around you, how you look at anything. That's where entrepreneurial mindset starts. कि आप इस चीज को अप्रोच देखते कैसे, कि आपको मुश्किल कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है या प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। दूसरा ये है कि आप उस प्रॉब्लम या उस सिचुएशन को अप्रोच कैसे करें, राइट? सो अप्रोच का मेरा मतलब है, ठीक है आपको प्रॉब्लम नजर आया, आपको अपॉर्चुनिटी भी नजर आई, लेकिन उसके बाद आप कोई एक्शन लेते या नहीं? वी लाइक दुनिया में अगर आप देखें तो देर आर एंडलेस प्रॉब्लम, राइट? और हर प्रॉब्लम के पीछे 50 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती, इवन मोर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। बट आर यू अ पर्सन जो एक्शन लेता है? आर यू प्रोएक्टिव? डू यू गो आउट देयर एंड यू ट्राई टू टेस्ट समथिंग? यार मैं करके देखता हूँ या मैं देखती हूँ, इसको इस तरह करेंगे तो कैसे होगा। वंस आप वो अप्रोच उठाते हैं ना, आप कहते हैं कि नहीं मैं एक्शन लेके देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का तीसरा जो शिफ्ट आता है, स्टेप आता है, वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक आता है, लेट्स से कि आपने उसको देखा, आपने एक्शन लिया, लेकिन वो एक्शन में एक ट्विस्ट है कि आप कैसे एक्शन लेते हैं। क्या आप सिंपली जाके वही करते हैं जो लोग करते आए हैं फॉर years and generations, या आप इस तरह सोचते हैं कि नहीं, दिस हैज बीन डन इन दिस वे, इन दिस मॉडल फॉर जनरेशंस, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ।
राइट, एंड देन यू ब्रिंग दैट इनोवेशन, आप अपने बाउंड्रीज को पुश करते हैं। सो ये सारा माइंडसेट का गेम है। इट स्टार्ट्स इन हियर, पहले वो आप एक्शन में नहीं जाते, पहले वो यहाँ स्टार्ट होता है। एंड देन आपका क्या होता है, आप जब वहां पे स्टार्ट करते, सोचना स्टार्ट करते, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करते, तो आपके मसले मसाइल आ जाते, राइट, आपके चैलेंजेस आते, एक तो अनसर्टेनिटी आ गई, आपके छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स आते, फेलियर्स आते, आप किसी से अपना आइडिया शेयर करते, वो लोग कहते नहीं यार कोई अच्छा आइडिया नहीं है, या वो कहते कि कोई आपका प्रॉब्लम तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आपका प्रॉब्लम आजकल टू ब्रॉड प्रॉब्लम वाला मसला मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है। आप किसी इंक्यूबेशन प्रोग्राम में अप्लाई करते, किसी इन्वेस्टर को पिच करते, वो आपको रिजेक्ट करते, तो ये जब सारे मसाइल आने लगते तो मोस्ट लोग क्या करते, गिव अप करते, या फिर आप बहुत सारे इंजीनियर से इधर एंड यू आर ट्राइंग टू डिजाइन अ सोल्यूशन, लेकिन आपका डिजाइन काम नहीं करता है, बार बार आपका कोड प्रोग्राम फेल हो जाता है, आप एक अच्छा सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो ये सारे मसले आपके वन आफ्टर अनदर रोल आउट होते जाते हैं। कोर अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के, बिल्कुल सेंटर में, कोर में जो चीज होती है वो रेजिलियंस होती है, कि हाउ रेजिलियंट आर यू, कि आपको एक मसला तो सामने आया, जैसे लेट्स से मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। 5 मंथ्स अगो मैंने अपना आइडिया पिच किया, उस आइडिया पे मैंने काफी सारा काम किया था, ये नहीं कि बिल्कुल आइडिया लेके जाके पिच कर रही थी, अच्छा खासा ब्लॉग सेटअप, वेबसाइट सेटअप, छोटी सी टीम भी बनाई है, काफी कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम पिच किया तो none of the panel was satisfied with the problem statement, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हमें होता है कि थोड़ा बंदा डिस्करेज हो जाता है। वापस आई तो मैं, मोर देन अ ग्लिम्स ऑफ डिस्करेजमेंट, इट वाज लाइक एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, एक्सिलरेटिंग था कि यार इतने सारे मसले सोल्व कर दिए, इतने सारे क्वेश्चन थे, लेट मी गो आउट देयर एंड लेट मी ट्राई टू फाइंड द आंसर, कि मैं इसको कैसे बेहतर बना सकती हूँ, मैं कैसे नेक्स्ट टाइम आके इसको ऐसे प्रेजेंट करूँ। और वो जो क्वेश्चन से एक्सिलरेटिंग बात कहाँ थी, उसमें एक लर्निंग माइंडसेट आता है, राइट, कि मुझे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, मेरा मसला या मेरा सोल्यूशन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई ग्लिच है और मुझे उसको फिक्स करना है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप वहां पे डिस्करेज हो जाते, या फिर आप डिफेंसिव होते कि नहीं भाई मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ ये ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं पता, तो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला बंदा कहता है कि काम डाउन करके सोचता है कि अच्छा यार ये मुझे फीडबैक आ रहा है, इस फीडबैक को मैं कैसे यूज करूं कि मेरा आइडिया, मेरा बिजनेस बेहतर हो जाए। आप जाते हो, यू कंडक्ट योर रिसर्च, आप दोबारा उस पर काम करते हो, वापस आ जाओ, ठीक है। सो दीज आर लाइक, आई एम सी कि टाइम कम रह रहा है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करती हूँ कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट at the end of the day, it's how a normal person would see a problem. An entrepreneurial mindset person sees an opportunity. How do you approach a problem and opportunity? Then how do you approach it in a way that you take action, and then how you stay resilient throughout जब आप वो action लेके किसी goal तक पहुंच रहे। That's basically it. इसके बहुत सारे डेफिनेशन से बहुत सारे वोकेबलरी हम यूज कर सकते हैं, बट एट द एंड जो क्रक्स है वो यही पे खत्म होता है कि आपका स्टार्ट होता है कि आप किसी चीज को देखते कैसे, एंड देन आप कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस कैसे रखते हैं, आप रिस्क कैसे लेते हैं किसी चीज में। तो मोस्ट ऑफ यू आर हियर, आप बिजनेस करना चाहते हो, विच इज ग्रेट टू नो। मैंने बोला बार बार, आई गेस मल्टीपल टाइम्स बोला कि इट्स नॉट इजी बट इट्स वेरी फन। ऑनेस्टली अभी सबसे ज्यादा डर ये लगता है कि ये बिजनेस नहीं चला तो 9 to 5 में नहीं जाना, राइट। तो बहुत मजा आता है बिजनेस करने में, बहुत मजा आता है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन ढूंढने में, बहुत मजा आता है अपने बॉस बनने में, एक विजन के साथ जीने में, लाइक यू आर डूइंग समथिंग बिग।
तो इट्स एक्सिलरेटिंग, इट्स वेरी फन, विच इज अभी हम उसकी तरफ जाते हैं कि अब सबने का आइडिया है, प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरह स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, जिसको हम आइडिएशन फेज कहते हैं, राइट। तो आइडिएशन में आपका ये होता है कि इनिशियली आपके पास एक आइडिया होता है, वो आइडिया कहीं से भी आ सकता है। वो आइडिया, हमारे पास एक फिजियोथेरेपिस्ट है, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, यू आर इन द इंडस्ट्री, आपको लगता है यार यहाँ पे ये सर्विस नहीं मिल रही लोगों को, ये सारे लोग का इतना मतलब लैक ऑफ ऑटोमेशन का मसला है, लैक ऑफ नॉलेज का मसला है, बहुत सारों के पास एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली उन्होंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा है उस प्रोजेक्ट में, या फिर आप डे टू डे चलते फिरते आपको कोई मसला नजर आता है। तो आइडिएशन फेज एक आइडिया से स्टार्ट होता है। जब आपको आइडिया आता है कि मुझे ये करना चाहिए, अक्सर हमें सोल्यूशन पहले आता है, but the best way to approach and start the ideation journey is to focus on the problem first. I've been telling this to entrepreneurs, but जब मेरी भी बारी आ गई तो मैं भी stuck हो गई थी एक solution लेके कि नहीं यार मुझे यही कर, but you have to go back to your problem. आपको मसला नजर आ रहा है, दिन आपने उसको dig in करना, डिग इन ऐसे करना है कि उस पे जितना आपसे टाइम स्पेंड हो सकता है, आप वीक्स नहीं, मंथ्स, एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स ओनली स्पेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। बिल्कुल सोल्यूशन का सोचे ही नहीं, प्रॉब्लम पे फोकस करें। और प्रॉब्लम पे कैसे फोकस करें? अब फ्यू वेज यू कैन डू इज, आप अपना ऑनलाइन मार्केट रिसर्च स्टार्ट करें, ट्राई टू लर्न मोर, डिग करें कि इस प्रॉब्लम पे किसने क्या लिखा है, कोई पहले रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे क्या आर्टिकल्स अवेलेबल है, क्या डेटा अवेलेबल है, उसको सारा पढ़े जितना पॉसिबल। वहां से आपके फर्दर आंसर्स, क्वेश्चन अराइज होंगे, फर्दर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस पे फिर अपना एक रिसर्च आप इस तरह से तैयार करें कि देन यू एक्चुअली गो आउट एंड टॉक टू द पीपल जो आपको लगता है कि ये लोग वो मसला फेस कर। अभी तक तो आप कर रहे थे, आपने अपने फ्यूचर यूजर के शूज में खुद को डालना है, राइट। सो यू गो देयर एंड यू सिट विद दोज पीपल एंड टॉक टू देम। आप बैठे उनसे बातें करें, जितनों से बात कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि मोस्ट जो स्पेशली यहाँ पे इंजीनियर से देवर आस्किंग हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हो जाते, डिस्कार्ड हो जाते। मोस्ट ऑफ जो इंजीनियर्स का अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये मसला है कि इंजीनियर्स अपना एक आइडिया लेके आते हैं, उनको अपने आइडिया से प्यार होता है, वो आइडिया वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनको लगता है कि आइडिया स्टील हो जाएगा। एंड देन वो उस पे मेहनत करते, काम करते, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगाते, देन वो जब बाहर मार्केट में फेंकते तो नो वन यूजेस देयर आइडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक वैक्यूम में वो डेवलप किया है। और आजकल बिजनेसेस वैक्यूम में डेवलप नहीं होते, कोई सोल्यूशन वैक्यूम में डेवलप नहीं होता। यू हैव टू को क्रिएट योर सोल्यूशन विद द यूजर्स। आप जब अपने फ्यूचर यूजर्स के साथ बैठ के बात करके उनको दिखा दिखा के हर स्टेप पे वो आइडिया आप उसको बनाएंगे नहीं, उस सोल्यूशन को, ये चाहे वो सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, लोग यूज नहीं करेंगे। तो टॉक टू योर क्लाइंट्स, फ्यूचर क्लाइंट्स, टॉक टू योर टारगेट ऑडियंस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक और हमारा जो मसला होता है कि टारगेट ऑडियंस का जो इशू होता है, इट्स लाइक हमारा जो टारगेट ऑडियंस होता है हम उसको बिल्कुल ब्रॉड रखते हैं, राइट। तो उसको थोड़ा सा आप ट्रिम करें ताकि ओवरवेल्म नहीं हो जाए ना आपका। बिल्कुल एक पूरी दुनिया के मसले तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम अपने मसले को थोड़ा कम करते, थोड़ा छोटा करके स्टार्ट करते, वन स्टेप एट अ टाइम। जैसे विशाल कह रहा कि मैं बहुत बड़ा एकदम से नहीं करना चाहता, मैं स्लो स्लो जाना चाहता हूँ। इवन विद आइडिएशन, इवन विद प्रॉब्लम एनालिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा स्लो जाए, छोटा जाए। एकदम से आप पूरी दुनिया को कैटर नहीं कर सकते, तो अपने टारगेट ऑडियंस को कम करे, छोटा करे, इसलिए देन इट विल बी इजियर फॉर यू कि आप उनसे बात भी कर सकते, आप उसी सेगमेंट को जितना पॉसिबल डिग कर सकते। तीसरी जो आप चीज कर सकते हैं, सोशल लिसनिंग इज अमेजिंग टैक्टिक। सोशल लिसनिंग में ये है कि आप लेट्स से आप फिजियोथेरेपी में काम करते, राइट। तो उसके अंदर क्या बात हो रही है इंटरनेट पे,
लिंक्डइन पे लोग क्या कह रहे, आपका इंस्टाग्राम पे लोग क्या कह रहे, फेसबुक पे क्या कह रहे, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, आप सेशंस इस तरह के वेबिनार्स में लोग क्या बातें कर रहे, क्या ट्रेंड्स चल, और बाहर ऐसे आपके पास लोग आते हैं तो वो आपस में किस तरह की बातें कर। सोशल लिसनिंग इज अ वेरी गुड टूल टू रियली सी कि आप सही ट्रैक पे, आपका आइडिया सही है, आपका प्रॉब्लम आपका वैलिडेट हो रहा है कि हाँ भाई लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं ये मसले। तो सोशल लिसनिंग एक्वायर करें, और ये कुछ ऐसे सिंपल मेथोडोलॉजीज है जिसपे आप अपने प्रॉब्लम को सही से डील कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आपका प्रॉब्लम पे आप इनफ टाइम स्पेंड करेंगे ना, देर इज अ कोड जो कहता है कि अगर आपका प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाए तो हाफ सोल्यूशन आपका निकल चुका होता है, विच इज ट्रू। क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम की समझ आती है तो देन यू बिकम कॉन्फिडेंट, यार मसला है दुनिया में, लोग फेस करते, इसके लिए मैं कोई भी सोल्यूशन ढूंढ तो ये सोल्यूशन चल जाएगा। तो उसके बाद आई होप ये ऑटोमेटिकली बंद ना हो क्योंकि इट सेज लेस देन अ मिनट। मैम दूसरी लिंक क्रिएट कर दी है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर हम दूसरी लिंक से शुरू करते हैं। ओके ठीक है। तो फ्रॉम द प्रॉब्लम एनालिसिस विद इन द स्टार्टअप आइडिएशन फेज, दूसरा फेज आपका आता है कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस एनालिसिस। राइट, आपका प्रॉब्लम तो आपने एनालाइज कर लिया, आपको समझ में आ एक्सक्यूज मी गया, आप कॉन्फिडेंट हो मैम, ये गए हम जी। नेक्स्ट लिंक में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिंक ओके आपके साथ शेयर किया है। पार्टिसिपेंट्स आपको दूसरी लिंक शेयर की जा रही है, काइंडली उससे दोबारा ज्वाइन करें। थैंक यू। जी मैडम आई आप कंटिन्यू थिंक करें। okay, everyone is back. So please, cameras, if you could, thank you very much. I think no one is really willing to turn on the camera. So मुझे थोड़ा सा कोई, let's have a conversation. I went too fast. एक तो I rushed through mindset a little. पर I'm really hoping कि like आप entrepreneurial mindset को होन करें, और mindset कोई naturally किसी में नहीं आती, right? Mindset is a thing जो cultivate, जो मसल की तरह ग्रो होती, वो आपके persistence, आपके पेशेंस एंड आपकी कंसिस्टेंसी से ग्रो होगी। एंड आप कंसिस्टेंसी इन अ वे कि आप प्रैक्टिस करते हो उस माइंडसेट को, आपको फीडबैक आता है तो आप उसको प्रैक्टिस करते हैं कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू अ फीडबैक दैट कम्स फ्रॉम योर ऑडियंस। और आपका फीडबैक बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली जब आप किसी के लिए सोल्यूशन डिजाइन करते हैं, क्योंकि आपके स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपके क्लाइंट्स आपको फीडबैक देते हैं, आपके इन्वेस्टर्स आपको फीडबैक देते हैं, आपके दूसरे स्टेक होल्डर्स। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ डू यू सी अ प्रॉब्लम? Let's see, guys. What do you guys have to say about the ideation phase or entrepreneurial mindset जो हमने discuss? Let's be real quick. मैं सोच के आई थी लेक्चर नहीं होगा, बट लेक्चर ही हो रहा है। चले, कोई आंसर नहीं है तो we will move on to our next phase of ideation. हमने बात की प्रॉब्लम एनालिसिस की, तो एनी स्टार्टअप आइडिया स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एनालिसिस। आप प्रॉब्लम एनालिसिस पे साल लगाए बेशक, लेकिन उसको डीप तब तक करें जब तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होते दिस इज द प्रॉब्लम। और कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? आपके पास डेटा आएगा फ्रॉम रिसर्च एंड रीजन के साथ, आपका क्रेडिबल डेटा आएगा। दूसरा, आप लोगों से बात कर चुके होंगे बैठ के, उन्होंने आपको वैलिडेट किया होगा कि जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो वो ऐसा है, इस तरह का सोल्यूशन है। एंड देन आपने सोशल लिसनिंग प्रॉपरली की है, राइट? सो देन यू आर एक्चुअली एबल टू से कि बेस्ड ऑन रीजन एंड डाटा एंड योर एनालिसिस आप कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, नॉट बिकॉज कि आपने सोचा, आपको लगा, उधर किसी ने नहीं, प्रॉपर अप्रोच के साथ। So from there, then we move on to analyzing the market. अभी तो हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिग कर रहे थे। This is your ideation phase. Yes, विशाल। अच्छा मैम, मुझे ये भी पूछना था कि जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं बिजनेस के लिए, जैसे अमेजोन है, सही है। अब जी अमेजोन क्या करता है कि हम कोई भी लोकल प्रोडक्ट्स ना मार्केट से उठाते हैं, तो हमें डायरेक्ट ना हमारा ब्लॉक कर देता है हमारा अकाउंट,
क्लोज कर देता है। उसका मेन रीजन ये है कि हम अनइथिकल प्रोडक्ट्स उठाते हैं। फर्स्ट सवाल सही है, मतलब लोकल प्रोडक्ट्स नहीं उठा सकते, जैसे कि कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट है। दूसरा सवाल ये दराज है। अब दराज में जो पुराने डीलर्स है ना, अब सबसे ज्यादा रेटिंग उनकी होती है। ये भी प्रोडक्ट कस्टमर सर्च जाता है ना, फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले उनके पास वो विशाल, शो होता है। आपका जो सवाल है वो बहुत बाद में आ रहा है। तो जी जी। हम आइडिएशन फेज में अभी, एंड आई थिंक वी कैन गेट टू अच्छा। दैट। मैं आपको स्पेसिफिकली amazon या दराज पे स्पेसिफिक ऑन द प्लेटफॉर्म में गाइड नहीं कर सकूंगी, बट मैं आपको हम्म। कुछ टिप्स शेयर कर सकूंगी इन अ वे दैट कि आप अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग या फिर अपनी आप ब्रांड की वर्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। हम फिलहाल बात कर रहे हैं आइडिएशन की, जो कि बहुत लंबा जंप हो जाएगा, तो हम वहां जा ही नहीं रहे। एंड स्पेशली गाइज, अगर आपके पास आप कोई ट्रेड कर रहे हो ऑनलाइन, कहीं पे आप एक फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे जो एग्जिस्टिंग है, दैट्स अ होल डिफरेंट गेम। उसमें ये वाली कहानी नहीं है जिसमें आपको, यस, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपको हर जगह चाहिए होता है, नॉट ओनली इन बिजनेस, एवरीवेयर, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जब आइडिएशन की बात, स्टार्टअप आइडिएशन की हम बात करते हैं, तो स्टार्टअप आइडिएशन में आपने एक अच्छा चंक आपका प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन टुडे आप अमेजोन पे जाके चीजें बेचते हैं, आप डिसाइड करते कि ये चीज मैं बेचना चाहता हूँ, तो क्यों डिसाइड करते, किस बेस पे करते, क्या उसकी डिमांड ज्यादा है, क्या उसकी नीड ज्यादा है। एंड देन आपकी जो अपनी एक यूएसपी जिसको हम कहते हैं, डिफरेंशिएट कंपेयर टू अदर लोग जो बेच रहे कंपिटिटर्स, उसको आप कैसे खुद को डिफरेंशिएट करते, ईदर बेस्ड ऑन द नीड और बेस्ड ऑन द गैप दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो हम अभी गैप की तरफ जा रहे हैं। हमने प्रॉब्लम तो एनालाइज कर लिया, फिर हम ये सोचते हैं कि सवाल ये आ जाता है कि मसला अगर था मार्केट में तो किसी ने सोल्व नहीं, क्यों नहीं किया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज ऑलवेज बीन अ सोल्यूशन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सोल्यूशन ना। एंड मोस्ट लोग आते, इवन जब हम जॉब में होते थे एंड वी वुड इंटरव्यू पीपल, एंड एक जो सोल्यूशन जो कि इट हैज बीन अराउंड फॉर डेकेड्स, मोर देन अ डेकेड, वो आके कहते थे कि कोई नहीं कर रहा, राइट। तो आपने अब देखना है कि मार्केट में सॉल्यूशंस क्या क्या एग्जिस्ट करती है, राइट। सो वी हैव अ प्रॉब्लम इन वन हैंड, हम सोचते हैं कि अभी क्या क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ। सो मैंने जब आइडेंटिफाई किया कि फाइनली यस दिस इज द प्रॉब्लम कि एसएमईज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नहीं लेते हैं, तो देन मैंने कहा कि क्यों नहीं लेते। तो देन आई वेंट आउट एंड आई स्टार्टेड टू डू माय रिसर्च, और फिर उनमें से आपने ढूंढना होता है कि टॉप, आप सबको उठा के एनालाइज नहीं कर सकते, आपके टारगेट ऑडियंस में आपके हिसाब से टॉप 6 सॉल्यूशंस कौन से अवेलेबल है मार्केट में, राइट। आपके ऑडियंस के लिए ये माइंड में रखे, आपके पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए उनमें से आप 5 टॉप उठाए, 6 टॉप उठाए, एंड देन स्टार्ट टू यूज देम एज अ यूजर, राइट। आप उसको यूज करके देखे, उनका वेबसाइट, उनका जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उस सब को गैदर करें, एनसी की कैसे कर रहे, क्या कर रहे, किस तरह कम्युनिकेट कर रहे, किस तरह रोल आउट कर रहे, किसके लिए कर रहे, कितनी प्राइसेस है उनकी, उनका पूरा सिस्टम कैसे डेवलप हुआ हुआ है, कितना ईज से लोग उसको यूज कर सकते हैं। वंस यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, उसको फिर आप इस तरह से प्लेस करें कि यू आर एबल टू फाइंड द गैप्स। अब आप लूप होल्स ढूंढ रहे, ठीक है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस एनालिसिस कर रहे, जिसमें आप लूप होल्स ढूंढ रहे कि इसमें ये मसला है, इसमें इस चीज की कमी है, इसमें ये गैप है, इसमें ये गैप है, इसमें ये गैप। एंड वंस यू हैव दैट गैप आइडेंटिफाइड, फिर आपका क्या है, अब आपको पता चल गया कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा विद द एडिशन ऑफ दीज पर्टिकुलर गैप्स, ठीक है। आप स्क्रैच से कुछ भी बिल्ड नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक कि देयर इज एनीथिंग आउट देयर जो अभी तक नहीं हुआ, राइट। तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को उठा ले, उनको बेहतर बना, और जो गैप्स है उनको आप फिल कर रहे। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि यस आई हैव अ प्रॉब्लम,
मैंने इसको वैलिडेट किया है, मैंने अपने कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर से बात की है, डेटा उठाया है, मैंने अपने एग्जिस्टिंग जो मेरे कंपिटिटर्स है उनको मैंने एनालाइज किए। अब ये गैप्स, ठीक है, अभी आपका क्या हो रहा है, नाउ यू कैन मूव टुवर्ड्स अ सोल्यूशन, ठीक है। अभी जाके आफ्टर मंथ्स और जितना भी टाइम आपको लगा है, अब आप मूव करेंगे टुवर्ड्स द सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन आपका आ गया, सोल्यूशन आपका जरूरी नहीं एक हो, आप पोटेंशियल सॉल्यूशंस को आउटलाइन करें। अच्छा, एक सोल्यूशन ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, चौथा ये हो सकता है, राइट। सो उनमें से आइडियल कौन सा, मोस्ट आइडियल को आप उठाए और उसका यस, थैंक यू, सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट टू प्लग इन माय चार्जर। सो हम बात कर रहे थे कि आपने प्रॉब्लम एनालाइज किया एंड आपने एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस एनालाइज किया, नाउ यू हैव अ फ्यू सॉल्यूशंस, आपको लग रहा है कि ये काम करेंगे। टॉप योर, पिक योर टॉप सॉल्यूशंस जो आपको लगता है कि दीज आर द मोस्ट आइडियल सॉल्यूशंस, एंड वहां से हम मूव करते प्रीटोटाइपिंग की तरफ, प्रोटोटाइप में भी नहीं जाते। आपके माइंड में कुछ फीचर्स बने हैं, कुछ सॉल्यूशंस बने, उसको लेके आप जाए उन्हीं पोटेंशियल ऑडियंस के पास। वो आपके किसी कागज पे हो सकता है, वो आपके किसी आप मुंह से जाके किसी को समझाए बोल के किया ये फीचर्स होंगे, इस तरह का सोल्यूशन होगा, आप दोबारा बात करना स्टार्ट करें। इसको हम टेस्टिंग कहते हैं, लेकिन प्रीटोटाइप टेस्टिंग कहते हैं। आपने प्रोटोटाइप भी अभी नहीं बनाया, तो प्रीटोटाइप टेस्टिंग कर रहे हैं आप जाके लोगों को, बिफोर यू स्पेंड योर टाइम, बिफोर यू स्पेंड योर एनर्जी, योर मनी, एनीथिंग, आपने अच्छा खासा टाइम लगाया, आपने आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम को, आपने एनालाइज किया है। अब बात करें दोबारा जाके लोगों से, यार आपका ये मसला था, नाउ आई एम थिंकिंग कि हम इसका ऐसा सोल्यूशन ला सकते हैं, सी इफ दे हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, और आप उनको ऑप्शंस उनके साथ शेयर करें, देखें कि हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू ईच ऑप्शन, राइट। आपको कुछ ना कुछ वहां से डेटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, देन कम बैक एंड आप अपने सॉल्यूशंस को रिफाइन करें। आप टॉप 2 लेके गए थे या टॉप 3 लेके गए थे, अब उसको रिफाइन करें कि ईच पे क्या आपको फीडबैक आया, आप इसको बेहतर कैसे बना सकते, राइट। एंड देन नाउ यू हैव रिफाइंड द सॉल्यूशन, अब आप उसको कागज पे लेके जाए, डोंट जंप इन। मैं रिसेंटली एक एंटरप्रेन्योर, एक इंजीनियर से मिली, एंड ही हैड वर्कड ऑन दिस सॉफ्टवेयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ, और आइडिया सिमिलर था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, ही वाज ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन उसने बिल्कुल अकेले साइलो में वैक्यूम में बनाया था। आई वाज टेलिंग यू कि को क्रिएट इट विद योर फ्यूचर ऑडियंस, फ्यूचर यूजर। तो बनाया, एंड कहता है कि इस पे मैंने 1.5 साल लगाया, मेहनत की है, आई डोंट नो व्हाट टू डू दिस विद दिस एनीमोर, ना ये किसी को यूज कर रहा है, ना मुझे इसको रोल आउट करना आ रहा है, ना आई डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक इस पे मैंने मेहनत की है। सो इमेजिन कि आप किसी चीज पे 1.5 साल लगाते हैं, एंड उस वो टेलर नहीं होता, वो कोई यूज नहीं करता है, वो यूजलेस हो जाता है, यू जस्ट कांट, आप उसको डस्टबिन में थ्रो नहीं कर सकते। सो इट्स अ पेनफुल जर्नी। सो टू अवॉइड बीइंग देयर कि 1.5 साल बाद या 1 साल बाद आपको समझ आए यार मैंने इस पे इतना टाइम लगाया, कोई यूज नहीं कर रहा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें। आप प्रॉब्लम पे टाइम लगाए, आप सॉल्यूशंस को एनालाइज करने पे टाइम लगाए, आप प्रीटोटाइपिंग में टाइम लगाए, देन आप प्रोटोटाइप पे जाके टाइम लगाए, एमवीपी की तरफ जाए, देन आप थोड़ा सा स्लो, वन स्टेप एट अ टाइम, लाइक विशाल वाज सेइंग कि आई डोंट वांट टू गो ऑल इन, जंप इन, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड देन आप उसको क्या करें, कागज पे एक नक्शा बनाए, लेके जाए। बहुत सारे तरीके हैं एमवीपी डिजाइन के, प्रोटोटाइपिंग के, यू कैन लिटरली आस्क जीपीटी, वो आपको बता देगा कि इसको इस तरह से करके लेके जाए। यू गो ऑन यूट्यूब, यू सी ऑन गूगल, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, द वे पीपल हैव डन दिस विदाउट इन्वेस्टिंग सो मच टाइम एंड विदाउट इन्वेस्टिंग सो मच एनर्जी। देन आप क्या करेंगे, आपका एमवीपी होगा, आप उसको लेके जाए, आप उसको टेस्ट करें, आपके पास डेटा आएगा, देन उसको रीइटरेट करें, बेहतर प्रोडक्ट बनाए थोड़ा,
रोल आउट करें, देखे कैसी वो इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे, देन आप वापस आए, आप फिर अपने थोड़े बेहतर प्रोडक्ट की तरफ जाए। तो इट्स अ होल जर्नी ऑफ लाइक लर्निंग एंड डूइंग एंड फेलिंग एंड रीइटरेटिंग, इम्प्रूविंग। इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। एंड ये जो जर्नी है, इस जर्नी में आपको बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज, एंड स्पेशली जीरो रिवॉर्ड। यू नेवर नो आपको कितने महीने लगेंगे टू डिजाइन इट, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग एग्जॉस्टिंग जर्नी जो आप अकेले तय करें मोस्ट ऑफ द टाइम एज एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की अशद जरूरत आ जाती है, राइट? कि आपने रेजिलियंट रहना होता है, आपने एक सेल्फ बिलीफ आपने रखना होता है, आपने एक इनोवेटिव माइंडसेट रखना होता है कि यार ये मसला है तो इसका उस उन चार जो मेरे पोटेंशियल कंपिटिटर्स है उनसे बेहतर मैं कैसे सोल्व कर सकता या कर सकती, इसको मैं चीपर तरीके से कैसे सोल्व कर सकता या कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको उनसे बेहतर तरीके, उनसे फास्टर तरीके से। सो आपके ऑडियंस की जो नीड है उनके लिए आपने थोड़ा सा इनोवेटिव सोचना होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू योर माइंडसेट, but using that mindset, putting that mindset into work, into action, that will lead you then to actually building a startup. और startup के लिए you have to go through the ideation phase, और ideation phase में mostly काम नहीं होता। I think universities can do an amazing job in ideation phase क्योंकि आपके पास comfort zone होता है। आप जब यूनिवर्सिटी में होते हो, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन आइडिएशन, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हो, आपने बिल्स पे करना होता है, आपके पास 2 साल नहीं होते, आपके पास 1 साल भी नहीं होता टू स्पेंड ऑन डिगिंग ऑन अ प्रॉब्लम, टू स्पेंड ऑन आप एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को एनालाइज करें, मार्केट को एनालाइज करें, आप प्रोटोटाइपिंग, एमवीपी, उसको रोल आउट कॉन्स्टेंटली करें, इम्प्रूव करें। सो यूनिवर्सिटी इज द टाइम, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में इस टाइम, इट्स योर, this should be an incubator, right? I don't know incubators universities के बाद क्यों बने right? They should be inside the university क्योंकि तब आप comfort zone में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप उस पे वो सारे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देन आपको पता है कि आपने कल ही उठ के बिल्स नहीं दे, राइट? कल ही आपके वो नहीं आने हैं, आपने चेक्स नहीं उठाने। तो yep, that is like all from me. मैं आइडिएशन के बियॉन्ड नहीं जाऊंगी। आई रियली वांट यू गाइज टू ओनली फोकस ऑन दीज मेन स्टेप्स। ये करेंगे बाकी सारा आगे हो जाएगा खुद ही, बट इनिशियल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रोज आपने अपने माइंडसेट को फर्दर इम्प्रूव करते हुए जाना है, रोज आपने अपने प्रॉब्लम को फर्दर अंडरस्टैंड करते हुए जाना है, रोज उस पर थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते जाना, जितना पॉसिबल, लाइक पुशिंग इट थ्रू। एंड वंस यू हैव एन एमवीपी, इन सारे स्टेजेस से गुजर के अगर आपने एक एमवीपी बनाया, यू आर ऑन द गोल। उसके बाद इंक्यूबेटर्स भी आपको उठाएंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, क्योंकि आपने टेस्ट करके, आपने ट्राइड एंड टेस्टेड, आप सोल्यूशन लेके आए, आप कुछ सोच के, कुछ समझ के, आप ब्लाइंडली कोई सोल्यूशन लेके नहीं आए। देन वहां से आगे आपकी जर्नी में कोई सपोर्टर, कोई हैंड होल्डर, कोई ना कोई आ जाता है, हु कैन guide you through. So guys, we are done with ideation. I won't add anything more क्योंकि I think इससे ज्यादा रात के इस टाइम आधी नींद में होंगे सारे। Let's hear from you guys. Before we leave, I wanna answer a few questions. अगर आपके हैं besides Vishal's, और Vishal has specific questions about Amazon and Daraz, जो कि platform wise I don't think I will be able to be of much help, but in terms of platform को कैसे खुद को कैसे differentiate करना है उसमें, you understand your customers at the end of the day, what do they need, who they are, how much they can pay, or offer quality services, differentiate yourself with continuously seek feedback। जैसे हम को क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो को क्रिएशन में यही है कि आप अपने ऑडियंस के लिए कुछ करें, आप जो मर्जी नहीं बेच सकते, वो जो खरीदना चाहते वो बेच,
and then get feedback, and then reviews ले ले, उनको display करे, and I'm sure you will be able to improve. But platform wise, I am sorry. Yeah. Thank you so much, ma'am. This was really detailed, and I hope audience के क्वेश्चन जो क्लियर होने चाहिए. बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन आउट ऑफ द स्कोप ही है. तो पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके कोई इन जनरल क्वेश्चन हैं तो काइंडली वो कीजिएगा. बिल्कुल ही इन डेप्थ कोई क्वेश्चन नहीं कीजिएगा. जी विशाल, आप पूछ सकते. हेलो जी आप आगे जी विपिन. मैम, मेरा सवाल ये भी था कि आपने ना बीच में दूसरी बात की थी सर्चिंग के बारे में, कैसे सर्च करना है आइडिया या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह. सही है. अभी मेरे पास थोड़ी बहुत, आप मेरी वॉइस तो सुन रही है ना मैम? आवाज आ रही है? अच्छा, कि माना सर्च के बारे में बता दें कैसे सर्च करना है, जैसे जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे ट्रेडिंग हो जाए, वो अभी हमें आती नहीं है. मैं उसमें लॉस भी कर सकता हूँ. कि ऐसी कंपनी हो जिसमें इन्वेस्ट करूँ, वो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आए, ऐसा की माना पैटर्न हो सकता है. Personal opinion though, I am not an expert in trading and all, but crypto मुझे बहुत पसंद है, and अच्छा. it has a good future, क्योंकि at the end of the day crypto ने आना है कल, right? If not today, after a few years. It's very personal opinion, and research थोड़ा बहुत मैंने किया है और पैसे भी लगाए. इट्स नॉट लाइक हमें लगता है हम एकदम से क्रिप्टो में पीएचडी करें, राइट? सो आप छोटा स्टार्ट करें, $5 $10 लगा के उसके साथ खेलें, राइट? एंड आई कैन से अगर आपको बहुत शौक है ट्रेडिंग का, तो आप बाइनेंस डाउनलोड करें, उस पर थोड़ा सा $5-10 डाले, एंड देन ट्राई टू सी क्या होता है. बेसिक गेम है ट्रेडिंग का. गिर गया खरीदो, उठ गया बेच दो. कुछ आप ट्रेंड्स देखो, आपका फोरकास्ट क्या चल रहा है, एंड उसके बेस पे मैम, आप आपका बिजनेस, जी आपका बिजनेस है वैसे, आप ये बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, क्या माना बिजनेस है? मैं इस टाइम एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डिजाइन कर रही हूँ फॉर एसएमईज टू ट्रांजिशन इनटू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. तो उसमें आई हैव अ टीम ऑफ 3. One of us is based in Lisbon, 2 of us are based here in Lithuania. मैं इधर next 3 more months हूँ यहाँ से, then I'll move. तो मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें we are 14 entrepreneurs from 14 different countries. सबका अपना एक आइडिया, अपना सोल्यूशन है. तो हमें भी ग्राइंड किया था पिछले 5 महीने से, यही बोल के रखा था कि 5 महीने आइडिया पे स्पेंड करना, प्रॉब्लम पे स्पेंड करना है, आपने बिल्कुल सोल्यूशन का नहीं सोचना. तो इस महीने, इस सेमेस्टर में वी आर वर्किंग ऑन द सोल्यूशन. So we spent 5 months only on the problem digging, problem identifying and analysis. This 4 months हम spend करेंगे designing the solution, the technology, the innovation and all. And then next जो हमारे 5 months होंगे बेल्जियम में, वहाँ पे हम उसको फिर स्टार्टअप की शक्ल देंगे, बिजनेस प्लान पे काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट रेज करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा एमवीपी यहाँ पे करेंगे, प्रोटोटाइपिंग, बट वहाँ पे वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि हम एक एमवीपी रोल आउट करें. सो दैट इज माय जर्नी. बाकी साइड पे मैं कंसल्टेंसीज करती हूँ, मैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स डिजाइन करती हूँ एंड इम्प्लीमेंट करती हूँ एज माय पार्ट टाइम जॉब. Thank you very much. Okay. Any other Participants, questions? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके मैडम, आई थिंक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जब हम किसी के लिए स्टार्टअप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर टीम बनानी होती है, फिर सबके रोल्स डिफाइन करने होते हैं, एक पूरा बिजनेस प्लान, एक फ्लो चार्ट होता है, हम कहाँ पर हैं, कैसे जाएंगे आगे. तो जब हम एज इंजीनियर हम स्टडी कर रहे होते हैं और साथ साथ ये चीजें भी सारी देखनी होती है, तो ये बहुत हेक्टिक लग रहा होता है. या फिर Yes. एक डेडलाइन होती है कि भाई ये जो कंपटीशन है जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं अभी इतने टाइम तक हमें पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर हम लॉस कर देंगे. तो वो डेडलाइन को देखते देखते जल्दी जल्दी में काम करते जा रहे होते हैं, तो फिर मेन जो चीजें हमें डिलीवर करनी होती हैं वो रह जाती हैं. तो मतलब एक तो ना, जिस तरीके से पाकिस्तान में आइडिया है या कोई वो और आते हैं तो हम वहां पर अप्लाई करते हैं. कोई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम इस तरीके से अपने कोई स्टार्टअप या इंक्यूबेशन कोई लॉन्च करें, या एज प्रैक्टिस के लिए हम उधर मतलब कुछ लर्न करें, जो आप सजेस्ट करें? मेरे ख्याल में
इंजीनियर्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इंजीनियर्स का स्टीरियोटिपिकल मसला बता रही हूँ कि आप प्रोडक्ट साइड पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं और आपको उस पे ज्यादा ग्रिप होता है, आपको पता है कि ये कैसे काम करता है। यूजुअली वहां पे जो मसला आता है बिजनेस साइड पे आता है, क्योंकि आपने टीम कैसे बिल्ड करनी है, पिच कैसे करना है, इसको सेल कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटजी कैसे होगी। तो उसमें टू बिगिन एक तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इनिशियली यस आपने खुद अकेले स्टार्ट करना होता है, बट ओवर द टाइम कोशिश करे, टीम इज ऑलवेज बेटर देन वन पर्सन, राइट। टीम इज इन अ, आप देखे पहले कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरे वीकनेसेस है। जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं बिजनेस साइड पे बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी साइड पे अच्छी नहीं थी। तो कॉन्स्टेंटली आई वाज नेटवर्किंग एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि वो टेक्नोलॉजी साइड उठा ले। एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ को फाउंडर जो कि सेल साइड पे बहुत अच्छा था। तो ये तीन को मैंने कंबाइन किया इन अ वे कि मैं ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी, एक बंदा जो फोकस है मेरे टेक्नोलॉजी साइड पे, उसकी डेवलपमेंट पे, प्रोग्रामिंग जो भी है, टीम बिल्ड करना है, उसने जो लोग हायर करने वो कर रहा है, और एक बंदा पूरा फोकस्ड है कि इसको बेचना कैसे, और उसने अपनी टीम बिल्ड करनी है। इफ पॉसिबल डोंट ट्राई टू डू इट अलोन, ट्राई टू सी कि आप बेशक, और दूसरी चीज ये है कि उनको इनिशियली आप सैलरी नहीं दे सकते, तो ऑफर सम स्टेक, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे 100% लेके कहाँ जाएंगे, राइट। तो आप अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी और आप शेयर्स डिवाइड करेंगे इन अ वे कि आपके पास इनफ शेयर्स पीछे रह भी जाए, आपने कल इन्वेस्टर्स को देना है, किसी और ने, आपने कहीं से फंड रेज करना है, वहां पे आपके काम आएंगे। तो मेजर शेयर्स आप अपने पास रखें, आप माइनर शेयर्स अपने को फाउंडर्स को दे दें, एंड देन बिल्ड अ टीम। क्योंकि आप टीम बिल्ड करेंगे तो आपके लिए फिर फास्टर होंगी, चीजें आसान होंगी, और आप की जो स्ट्रेंथ है आप उस पे प्ले कर रहे होंगे, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उस पे प्ले कर रहे होंगे। तो आई थिंक टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हम अपने बूट कैंप्स में बिफोर गोइंग इनटू इंक्यूबेशन वी वुड मेक श्योर कि आप एक दो के साथ टीम अप कर लें। सो यू आर वेरी राइट कि इट्स नॉट एन इजी जॉब कि आप प्रोडक्ट भी बना रहे हो और साइड पे इतना सारा कभी कभी मार्केट रिसर्च इज ऑल्सो अ स्किल, राइट। आपने एक मेथोडोलॉजी यूज करनी होती है, कुछ टूल्स आपने यूज करने होते हैं, उसमें भी इफ पॉसिबल गेट पीपल ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू डू इट टुगेदर इंस्टेड ऑफ आप बिल्कुल अकेले उसको। आई होप दैट वाज द क्वेश्चन जो मैंने। यस मैम, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट टाइम था आई थिंक हमने सब पार्टिसिपेंट्स को एंगेज किया और इतना इंटरेक्टिव सेशन किया। तो वीडियो का थोड़ा मसला रहा, वो पाकिस्तान में लाइट भी नहीं होती तो मोस्टली लोग नहीं ओपन करते, तो उसके लिए दरगुजर कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, इट वाज नो प्रॉब्लम। इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड। थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल हैव एन अदर सेशन, हम देखेंगे अगर कोई अच्छा टॉपिक हुआ तो। थैंक यू फ्रॉम एसीओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच एवरीवन। बहुत मजा आया आप लोग से बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वीडियोस ऑन होती तो अच्छा होता है। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे। No चलो, problem. थैंक यू। All the best with your startups. You can reach out to me anytime. बस आप लिंक्डइन पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैसेज करें। कभी कभी बिजी हो जाते, बट आई ऑलवेज टेक टाइम टू रिप्लाई, एंड हम कन्वर्सेशन फिर आगे चला सकते। थैंक यू ओके मैम, सो थैंक मच। यू, गुड अल्लाह नाइट हाफिज। गाइस। अल्लाह हाफिज।